Welcome to weekly forecast of Nifty top 10 stocks according to their weightages and major indexes like gold, silver, crude, USD INR. What will be the possible direction or possible trades for the next week from 8 to maybe 13 or 14? Okay, so let's begin with the gold. So early chart. So earlier in the gold, we were expecting like one up, that is maybe like a faster to the upside. 80% is the chances, or minimum is the 61%. So we'll see what is the percentage. It's near 61%. It reversed from there. And if you see the total movement, the faster only from this means यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये फास्ट डाउन साइड है कंपेयर टू ये वाला, बट यहाँ पे जो अपसाइड मूवमेंट था इसके वजह से हमने ट्रेड का प्लान बनाया था कि यहाँ पे आप अपसाइड कर सकते हो मिनिमम टू दिस और मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 80%। अभी क्या होगा फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट वीक, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे चैनल बन रहा है लाइक अ ट्रायंगल और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल 1 2 3 4 5 हो सकता है यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे फॉर द डाउन बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर अप और फर्दर। यहाँ पे in case of gold, above this you can expect one more up, maybe to the 80%, that is 2120। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो यहाँ से अप टू ट्रेंड लाइन 2020 तक हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर द गोल्ड नेक्स्ट वीक स्टे बाय above this and sell up to 2020। ओके, कैन बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और यहाँ पे ABC कंप्लीट किया है, सिंपल हो सकता है ये कंटिन्यूएशन हो इसका, so that will be like A, this is B, and C for the downside, maybe up to the level of 1970 or 1980. Okay, so this is for the gold. Silver, earlier we were expecting this, like if raise is slow, then we see one fall. But यहाँ पे आप देखो, this was upside movement, right? One, so we were expecting it to go a little bit faster to complete this A, B, and C for the downside. But it went down from this, तो हमको कहाँ पता चलता है कि we were wrong? Let's silver once again. No, you can you will come to know from here, like this is the time and this is the time. This is the faster downside and trend has changed from this, it went downside. Okay, now क्या हो? It's silver. Let's say again it may come little bit down. Overall picture we will have A, B, and C. Look for sell, not to buy as of now. Once it comes to the level of 22 or 22, then we can see one more up before it can go any further down. Crude oil. In the last weekly forecast video, we said that extremely it can come to the 69 and 64. 69 is the minimum possibility, 64 in extreme cases, but it reversed from there only. So now in crude oil, what we can expect is upside. Now it is going upside. Fine. Now we can expect one up in case of crude oil. So look for the buy setup. Why? Because this is now a faster moment compared to this moment. Now it has gone upside. So possibly this may trade in a channel like this. So look for buy in case of crude oil for 77 or 75 with the 71 SA. Okay.
earlier we were expecting this like time if it is taking the same. This is the time equally. This is the time. So when is time is taking equally, but price is not moving, the one correction is expected. So according to that concept only, we were short or expecting it to fall, but it went down. Now you have to compare this time and this fall time. So if it is again matching, so we might see one up before it can go any further up or further down. और ये भी हो सकता है against this smaller downside. You can see here, this is the time of downside, right? Why I'm expecting this sir, यहाँ पे मैं बाइक क्यों करना चाह रहा हूँ, तो ये अभी फास्टर डाउन साइड है और इससे भी फास्ट ये अप साइड है, राइट? बट अगर ये मूव नहीं करता है, ऐसे टाइम पास करता है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि वन मोर डाउन बिफोर इट पता। सो हम यूजुअली प्राइस को देखते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा टाइम को भी देखना चालू कीजिए कि वो प्राइस स्लो आ रहा है या फास्ट आ रहा है। उसके हिसाब से आपका जो ट्रेड है वो इजी बन सकता है। यहाँ पे भी देखिए, ये फास्टर डाउन साइड है, ये स्लोअर अप साइड है, राइट? आप देख पा रहे हो मेरे ख्याल, राइट? तो दिस इज हाफ टाइम। सी ये टाइम ज्यादा ले रहे तो हो सकता है वन टाइम। ये फास्ट है, अगेन ये स्लो है, ऐसे एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ता है इसके साथ, बट सिंपल आप अभी प्राइस देख रहे थे, अभी आप प्राइस के साथ टाइम भी देखिए। हाँ, दैट्स इट। ठीक, यहाँ पे भी अभी पूरा मतलब ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ से यहाँ टाइम, यहाँ से एक टाइम मोस्टली इक्वल लग रहे हैं। तो देर इज डिफरेंट पैटर्न लाइक ट्राइंगल, इफ यू आर लाइक wave traders or something, or if you follow neo wave, you can know these concepts. Okay, so look for buy in case of crude oil, or if it is taking more time, then we can expect one more. So USD INR, as expected, like it is going to go for downside. So look for sell setup, not to buy. Nifty, कल हम ग्रुप में शेयर किए थे कि यहाँ से ये अप टू 21,690 तक आ सकता है, तो लो वॉज 680। मैं थोड़ा आपको ट्रेड के बारे में और एक बार बताना चाहूँ। इट वॉज वेरी मतलब अच्छा था। क्यों अच्छा था ये बोलता हूँ कि पहले ये था कि कैंडल ओपन होते ही एक बड़ा कैंडल था, ठीक है? इसके बाद अगर इफ आई एम सीइंग इन 1 मिनट, आई यूजुअली सी चार्ट्स इन 1 मिनट लाइव मार्केट। यहाँ से देखिए तो पहला कैंडल था, ये दूसरा कैंडल, तो ऐसा लग रहा था कि इस कैंडल का मूव को अगर देखें आप, इतना बड़ा कैंडल है, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, और क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो था वो अपसाइड ही था, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो रहा था कि यहाँ से शायद अपसाइड हो सकता है, बट थोड़ी देर अगर वेट करने के बाद ये जो डाउन साइड आया, ठीक है, ये थोड़ा होप किया कि चलो ये डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। और हमने यहाँ से एक ग्रुप में भी शेयर है, कैन सी, यहाँ से मैंने देखा तो यहाँ से जो ये कंसोलिडेशन जो में चला गया और एग्जैक्टली इस पॉइंट को आया और वहां से रिवर्स होना चालू। तो हियर वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक वन करेक्शन। सो करेक्शन कितना आ सकता है? एटलीस्ट मिनिमम आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू दिस रेंज, दैट इज 21,742 पहला, ठीक है? उसके बाद दूसरा टारगेट होता है कि नियरली ये जो थोड़ा एक्टिविटी कुछ चला था नियर दिस एरिया, मतलब पहले ये कैंडल लिए, फिर इसके बाद थोड़ा अकोमोडेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, मतलब ट्रेडर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बनाए अपने, तो इस रेंज तक ये आ सकता है, तो उसी रेंज में ये फिर रिवर्सल, ठीक। तो अभी अगला क्या होगा? अभी जो आप निफ्टी का ट्रेंड समझिए, देयर इज नो डाउनसाइड एज ऑफ नाउ, ठीक है? यहाँ पे ये डाउनसाइड फास्ट है, ये ऐसे डाउनसाइड आ सकता है, बट वी विल वेट फॉर दैट। यहाँ से देखिए अभी जो ट्रेंड है आपका, ये अपसाइड है, राइट? यहाँ ये लो है और ये हाई है, और ये लो और ये हाई के बीच में अभी ट्रेड है, ठीक है? तो ओवरऑल ट्रेंड इज अपना, हम खाली यहाँ से आ सकते हैं। अगर हमने अभी
खाली इतना देखते हैं कि यहाँ से ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट, यहाँ से अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है। तो जब तक ये हाई नहीं होता है तब तक हम ये सोचेंगे कि चलो यहाँ से ना नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए, ये 80% से नीचे आए। ये अभी शायद 31% या 50% के आसपास है, या 50%, 50% के आसपास है। तो यहाँ से या तो ये अभी ये कॉन्सेप्ट का समझो, यहाँ से लेके यहाँ आया, ठीक है, तो ये डाउन साइड है अभी, तो इसका हाई और इसका लो, इतना समझो कि इसका लो और इसका हाई ये अभी डाउन साइड है, ठीक है। तो इस डाउन साइड को हम अगर लेते हैं तो अभी ये क्या है, थोड़ा अपसाइड, तो हो सकता है यहाँ से ये रिवर्सल मिले। तो थोड़ा अभी मैं आपको और एक बात समझाना चाहता हूँ। अभी आप इसको 30 मिनट पे जाइए। 30 मिनट पे अभी क्या होगा हमारा, जो इंटरडे ट्रेड करते हैं या चार्ट को देखते हैं, तो पहला आप अपना ट्रेंड एनालाइज कीजिए कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अभी मेरे लिए क्या है, जो जो भी चल रहा है अभी, ये अभी अपसाइड है ना, क्योंकि जो लो है जो है, अभी मेरा लो हो गया, सोचिए ये है, और अभी का जो मेरा हाई है ये, तो ए है अभी अपसाइड, ठीक है। तो ये बीच में जो भी हो रहा है इसका कंसोलिडेशन, तो हो सकता है यहाँ पे ये स्लो हो रहा है तो एक अपसाइड मोमेंट हमें मिलेगा। तो कितना मिल सकता है, अगर हम 21,830 को क्रॉस करते हैं तो शायद हम 80% या 61% तक मूव कर सकते हैं। वो क्यों मैंने बोल रहा हूँ कि 80% तक हो सकता है, ये ब्रॉडली अगर देखें तो ये टू वेव स्ट्रक्चर लग रहा है। तो टू वेव स्ट्रक्चर में मोस्टली क्या होता है, इट गोज अप टू 79 और 80%। तो फ्लैट बनाने के लिए या दो दो पॉसिबल पैटर्न है यहाँ पे, या तो ये ट्रायंगल बनेगी या बनेगा फ्लैट। तो फ्लैट बनने के लिए आपको स्लो जाना पड़ेगा यहाँ से 80% और 100% और इवन 120%। तो ये 80% से गिर सकता है, 100% से गिर सकता है, या 120% से, या 130% से, 125% से गिर सकता है, ठीक है। अगर ये फास्ट जा रहा है तो जब फास्ट जाने पे क्या होगा, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपको ये ट्रायंगल बन सकता है। ट्रायंगल अभी मैंने बोला कि आपको प्राइस के साथ टाइम भी देखो, तो फास्ट स्लो आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी समझो ये है, अभी ये भी फास्ट है, तो हो सकता है ये ट्रायंगल बने। तो टोटल ए हो गया, ये बी हो गया, फिर यहीं से कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर नीचे ये करके ट्रायंगल पैटर्न होने का चांसेस है। तो अभी आपके लिए क्या है समझना है, इसके ऊपर यू कैन बाय फॉर एटलीस्ट 61 to 80%, मतलब हो सकता है 21,830 से आपको 21,900, 24 and 22,000 तक जा सकता है। तो इन माई ओपिनियन स्टे इन बाय इन केस ऑफ निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक अबो 21,830, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी अपसाइड ही है। तो जो मेरा अभी का जो लास्ट ट्रेंड है, मतलब आर्ली चार्ट में अगर आप देखें तो दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई, और इसी बीच में ये ट्रेंड ट्रेड हो रहा है। तो अबो दिस एंड बिलो दिस वी कैन सी क्या चेंजेस हो सकता है। और यहाँ पे अगर मैं देखा तो ये हाई और ये लो के बीच में हो रहा है, तो हो सकता है ये एक अप मूव दे, ठीक है। तो स्टे इन अ बाय इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, मे बी टू द अगेन दिस और दिस लेवल, ओके। उसके बाद देखेंगे क्या, तो एटलीस्ट अप टू दिस वी कैन वॉच, आफ्टर दैट हाई पे कैसे ये जाता है, स्लो जा रहा है, ठीक है। स्लो जा रहा है तो हो सकता है ये फिर एक डाउन आए बिफोर इट कैन गोइंग फर्दर अप और फर्दर डाउन, ओके। तो नेक्स्ट बिटकॉइन, ये तो ले लेते हैं। earlier we were in a plus or like in a buying mode for 48,000, तो इसके बाद एक शार्प डाउन मूव आया ये, ठीक है। तो अभी आप देखो ये जो अप मूव था, ठीक, इससे भी ये डाउन मूव थोड़ा शार्प, तो हो सकता है यहाँ से हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर अप और फर्दर डाउन। सो बिटकॉइन अगले हफ्ते के लिए हो सकता है सेल सेटअप दिए आपको, नॉट अ बाय, ओके। अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स जाते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस वी वेर एक्सपेक्टिंग लाइक ए बी और सी, अगेन यहाँ पे
आप प्राइस एंड टाइम कंपेयर कर सकते हैं। इसका हाई लिया मैंने और लो को हाफ को कनेक्ट किया, तो ये मेरा हाफ टाइम देता है, मतलब ये हाफ टाइम है, ये हाफ टाइम, इट्स लो। तो एक करेक्शन आ सकता है इन केस ऑफ बजाज फाइनेंस। बट अभी के लिए नहीं लेना है आपको, यहाँ से शॉर्ट नहीं करना है। ये बी के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मतलब हो सकता है ये टोटल ए और ये बी और सी के लिए हम ट्रेड करें। यहाँ पे अगर इंटरनल वेव्स आप देखें तो कितना है, मोटा मोटा अगर आप ऐसे हम लाइन चार्ट में देखें तो आपको इक्वली की पता चल जाता है कि कितना वेव्स बना है सकता है। ठीक है, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 ए बी और सी, मतलब मोटा मोटा आपको दो वेव लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये ए बी सी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ये बी सी, मतलब ये हुआ, ये बी हुआ, अभी जो जा रहा है वो सी के। ठीक, सी में भी आपको देखना है कि कितना जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा करे 61% 80% फ्लैट की करेक्शन की जैसा है। तो आप ऐसे भी हो सकता है ना सर, ये 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कैसे क्या ध्यान में रखना है कि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, तो ये अगेंस्ट ट्रेंड है, तो हमें वेट करना है इस ट्रेंड पे बस। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक, तो अभी आप अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे तो कितना कितना ट्रेड कर सकते हैं, शायद इतना तक, इतना तक, इतना तक, या यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप कोई भी टाइम फ्रेम जाओ, अगर मैं जा रहा हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक, आप इतना समझो कि जो भी अभी का ट्रेंड चल, ठीक, जो भी ये ट्रेंड था अभी डाउन साइड था, ये अभी आप है। ठीक, तो यहाँ से भी आप टाइम पकड़ो, ये लो था। ठीक, ये लो था तो मतलब टाइम तो ज़्यादा ले रहा है, तो हो सकता है कि एक मुंह में मिले डाउन साइड। तो कब आपको यहाँ से एंट्री या एग्जिट बन सकती है, सेम यहाँ पे अभी देखिए, आपको सेल के लिए देखना है ना, राइट। तो सेल के लिए मतलब आप डाउन साइड देखो पहले। ठीक, ये रहा आपका डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, इससे भी स्लो हमें करेक्शन मिलना चाहिए, उसके बाद हम शॉर्ट। ठीक है, बट अभी देखिए क्या है, ये फास्ट है, ये स्लो। तो हो सकता है यहाँ पे एक अपसाइड मिले बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर। अभी बी वेव में है हम, बट एक डाउन साइड जरूर मिलेगा इन बजाज फाइनेंस। लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ बजाज फाइनेंस। ओके, तो HDFC बैंक, बैंक 50% रिप्लेसमेंट वहाँ पे है। ठीक है, HDFC बैंक अभी हो सकता है करेक्शन मिले बिलो दिस, सो लुक फॉर सेल बिलो दिस, और यहीं से अगर वो रिवर्स ले रहे हैं तो हो सकता है और एक बार हमें अपसाइड देखने को मिले बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर डाउन और फर्दर। सो यहाँ पे बिलो 16,868 लुक फॉर सेल, अबोव लुक फॉर बाय। हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टे इन अ बाय, बिकॉज यहाँ से ये जो बना है वी रिवर्सल की जैसा कुछ ऐसे बनता है, तो फिर एक बार हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। सो लुक फॉर बाय अप टू 27। ICICI बैंक, ये क्या था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में फेल एज इट्स इन थ्री वेव। अच्छा, मैंने ये कॉन्सेप्ट है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों फेल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोर्थ वेव में अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि फिफ्थ के बाद रिवर्सल आता है। तो एक अपसाइड मूवमेंट में अगर फिफ्थ वेव में हेड एंड शोल्डर बनता है तो वहाँ का रिवर्सल जो है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क करने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेव समझेंगे तो समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, कहीं भी बनता है तो हम देख पाते हैं, तो हम समझते हैं कि फेल हो, क्यों फेल हो, पैटर्न वर्क नहीं करते। पैटर्न वर्क करते, बट आपको समझना है कि वो कौन सा वेव में है। तो उससे क्या है, आपको ये डबल क्लैरिटी मिलेगी कि ये फेल होगा या करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फेल हो सकता है। इसका मैं अपसाइड ले लेता हूँ ताकि आपको देखिए इनसाइड में टॉप। ठीक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। तो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आपको ट्रेड भी दिया कि डाउन साइड मूवमेंट यहाँ से, फिर ये रेड भी आया, बट अभी ये ऊपर जा रहा है। क्यों हो सकता है, हो सकता है ये फोर्थ वेव में है, तो यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, और ओवरऑल पे आप ट्रेंड देखो तो ये फास्ट है, ये स्लो है। तो वी विल गेट वन बाइंग अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ ICICI बैंक बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर डाउन, फर्दर डाउन। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है
from 998 or 1000 for at least 1011 or 1030 or one more up, maybe towards the 1040 and 1080. So look for buy setup above this, and अगर स्लो ऐसे डाउन जा रहा है तो वेट फॉर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड देन बाय, क्योंकि आपको फास्ट टारगेट मिलेंगे। स्लोअर टाइम पास या कंसोलिडेशन फेज आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस होता है कि नहीं जा रहा है, क्या होता है, ये सब है। क्योंकि आप जब ट्रेड लेके रखते हो तो धड़धड़ करता है, जब नहीं लेंगे तो धड़धड़ नहीं करता है। तो इसके लिए मार्केट को वॉच कीजिए, स्लोअर फेज अवॉइड कीजिए, जो भी इम्पल्स वेव है उसको पकड़ने की कोशिश आप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज फॉर ICICI बैंक। इन्फोसिस, ओके, सी वेव बी, ओके, राइट। ओवरऑल ट्रेंड ये है कि यहाँ से अब जाके फिर एक डाउन आना है, बट मिनिमम 1600 एंड 1640 तक बाई के लिए हमने पहले बोला था। तो यहाँ पे मिनिमम 1600 तो किया है, शायद हाई कितना है, 1592 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ का अगर मैं एक पकड़ता हूँ तो यहाँ से एंड होने का है, बट यहाँ पे ये स्लो है तो हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो एक अप मूव और पेंडिंग है इसमें, इन्फोसिस में। तो यहाँ से हमें अप मूव मिल सकता है और सेम। ठीक है, तो ये जो है अभी शिफ्ट हो जाएगा। तो लुक फॉर बाय इन केस ऑफ इन्फोसिस फॉर above 1542 for 1600 and 1640, और मिनिमम प्रीवियस हाई जो 1593। ATC, पहले हम इस पे बाई पे थे क्योंकि ये BC सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हो सकता है 1 2 3 4 5 टुवर्ड्स 460 470, शायद 470 किया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, सिंपल है, चैनल ब्रेक करता, अभी चैनल के टॉप पे है, हो सकता है थोड़ा हमें करेक्शन देखने को मिले, उसके बाद वन, राइट, से 1 अप। अगर कभी भी किसी मोड पे भी अगर फास्ट आपको डाउन साइड मिल रहा है तो वहां से अपना जो एनालिसिस है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फास्ट मूवमेंट है तो फिर कंसोलिडेशन है तो कहाँ जाएगा, फास्ट मूवमेंट, कंसोलिडेशन एंड डाउन। ओके, सो लुक फॉर सेल इन केस ऑफ ITC एज ऑफ नाउ। कोटक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है अभी, तो स्लोअर है तो चलेगा। यहाँ पे 80% यहाँ तक है, ठीक है, 61% पे होना, चलो। तो अभी ये फास्ट है, तो अगर यहाँ आता है तो फिर ये वन मोर आप जाने के लिए रेडी है, तो वेट फॉर दिस चैनल और नियर चैनल यू कैन बाय, प्लान योर बाय सेटअप इन केस ऑफ कोटक बैंक। L&T, above this you can look for one buy, that is for like simple structure A, B and C। ओके, तो टॉप साइड से हम यहाँ से मिनिमम देखना चाह सकते हैं, द एरिया विल हैव थ्री वेव्स, तो यहाँ से वन अप बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर डाउन और फर्दर अप, बट यहाँ पे ये मतलब कंसोलिडेशन ऊपर है, ओके, यहाँ पे एक इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर था। ठीक है, ये चैनल पे ही है, मतलब चैनल्स का अगर ब्रेक डाउन करते हैं तभी हम इस पे लो या डाउन साइड का प्लान करेंगे, बिफोर लाइक 3400 ओनली, बिफोर दैट नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे अपसाइड के लिए ट्रेड बन जाए हमें, तो लुक फॉर बाय सेटअप फॉर 3600 अबोव 3560 से लेके 3640 पॉइंट्स का मूवमेंट L&T में हमें देखने को मिल सकता है। रिलायंस क्या स्लो है, तो ओवरऑल क्या है, ठीक है। हाफ टाइम देखिए मैंने डाल के रखा है यहाँ पे, अगर इसी बीच में मतलब बिफोर 30 जान, मतलब इस मंथ एंड तक ये क्रॉस करता है तो एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर नहीं तो शॉर्ट टर्म सेल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैसा है कि स्लो हो रहा है,
तो हो सकता है हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिले। अगर टाइम भी खत्म हो रहा है तो फिर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। अगर टाइम के पहले अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। सो लुक फॉर सेल बिलो सेल बिलो 2575 बाय अबव 2637। ठीक है, चलिए टीसीएस चैनल के टॉप पे है अभी 1 2 3। ठीक, तो यहाँ से हो सकता है हमें वन मोर अपसाइड देखने को मिले। सिंपल स्ट्रक्चर है 1 2, ये 3 और 4 में है। एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ टीसीएस। सो लुक फॉर बाय। व्हाई आई एम सेइंग बाय अगेन, लाइक 1 2 3 4 5 वो तो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो करेक्शन था मे बी जिगजैग और ट्रायंगल के जैसा था, ये अभी जिगजैग नहीं था यहाँ पे सर। यहाँ पे ट्रायंगल करेक्शन हो सकता है या फ्लैट करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो करेक्शन था वो जिगजैग था, और अल्टरनेटिव्स आर वर्किंग। नाउ वन मोर अप बिफोर इट कैन गो एनी फर्दर अप। सो 80% इज द मिनिमम फॉर द फिफ्थ वेव। तो यहाँ तक आ सकता है 39 इन केस ऑफ टीसीएस। ठीक है, जो ए बी ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 0 2 ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है चलता है, नो इश्यू। अब यहाँ से मैंने अगर लेता तो ये भी ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रहा है, तो अभी इनसाइड द चैनल अगर आता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे अंदर आया कंसोलिडेटिव फिर होता है। ठीक है, दिस इज फॉर द नेक्स्ट वीक एंड प्लीज ट्रेड केयरफुली। 90% ऑफ द ट्रेडर्स विल लूज बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ये है कि आपका जो प्लान है वो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान यू कैन प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। ठीक है, और दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजंस प्लीज डू टेक योर एक्सपर्ट एडवाइस। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल, टेक केयर गाइस, बाय बाय। एनी डाउट हो आपको तो ग्रुप में मैसेज करो या मेल करो। थैंक यू।